So शुरू से शुरू करते हैं, थोड़ा सा theory. Okay. Mainly I concentrate on the code stuff and hands-on, but if you guys are looking for some interviews as well, तो थोड़ा सा एक theoretical knowledge deep में होना भी, it's a positive thing. Okay, so what exactly is Selenium? It's an open source automation testing tool for web application. Selenium is only for web application. You cannot automate standalone application. Standalone application like अगर आपको याद हो तो पहले के टाइम पे MS Word, MS Excel, you have to install that whole office suite on your machine locally, right? So those things you cannot automate using Selenium. In order to automate those things, there are different tools, but will not concentrate on those tools. Apart from that, Selenium is an open source. By open source, it means there is no license involved in downloading Selenium. Okay. Selenium पे अभी कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा काम कर रही है, कुछ आइडिया है आपको? The whole Selenium project is backed up by which company? ThoughtWorks ने तो स्टार्ट किया था. मतलब ThoughtWorks में स्टार्ट हुआ था Selenium. Okay, the answer is pretty much predictable. Google is contributing a lot in Selenium. So Selenium WebDriver 3.0, which will be studying in this particular course. इसके बाद अभी एक Selenium 4.0 भी आया है, उसमें मेजर कंट्रीब्यूटर गूगल है, बट मतलब वो अभी भी इट्स काइंड ऑफ लाइक not in commercial use, still not in commercial use, but Selenium WebDriver 4.0 market में आ चुका है. Okay, so okay, apart from open source, it has multiple browser and platform support. You can run Selenium on Mac OS, Windows, Linux, anything. Browser also. Apart from Edge browser, most of the browsers work perfectly fine in Selenium. Edge जो भी Microsoft ने नया लाया है, उसके XPath, उसका जो एक्चुअली इंजन है ब्राउजर का, उसमें कुछ इश्यूज हैं which is not performing well with the XPaths of the Selenium. XPaths क्या होते हैं ये मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, but right now apart from Edge, Selenium works perfectly fine with all the other browsers. Okay, whether it's Firefox, Chrome, Safari, anything else. Okay, so Selenium के 4 major components होते हैं. One is the ID, which you guys have already done. तो मैं इस पे ज़्यादा टाइम दूंगा नहीं ID पे, because it's only from the beginner's perspective. और ID अभी एक्चुअली एब्सोल्यूट हो चुका है, तो ID कहीं यूज होता भी नहीं. इट्स जस्ट फॉर योर पर्सनल स्टफ. अगर आपको जैसे कुछ एक जल्दी से स्क्रिप्ट डेवलप करनी है. अच्छा, Selenium ID में ये दिखाया था ना कि आपके जो एक्शन रिकॉर्ड होते हैं उससे स्क्रिप्ट्स कैसे जनरेट होती हैं. यस, Okay. दिखाए थे. मतलब from your ID script to Python to Java, you can generate code in Python and Java as well from the same ID script, right? वो तो नहीं, एक्चुअली पाइथन का जो लिंकअप होते हैं वहां से ही मतलब वो ब्रेक हो गया था. आईडी कैसे मतलब रिकॉर्डिंग कैसे होते हैं, स्क्रिप्ट कैसे जनरेट होते हैं, उतना तक दिखाया था. Okay. If I am not wrong, like Atish or anyone can give the answer as well. That's right, Moonam.
यस। ओके चलो मैं एक काम करता हूँ, एक बता देता हूँ. दिस विल हेल्प यू गाइज इन फर्दर डेवलपमेंट व्हेन यू गाइज विल बी डेवलपिंग फ्रेमवर्क एंड राइटिंग कोड ना, तो दैट विल हेल्प यू गाइज. इसके पहले ओके, so let's first go through the components. Selenium IDE, it's a Firefox tool. पहले स्टार्टिंग में ये सिर्फ Firefox के लिए था जो Selenium IDE डेवलप हुआ था. It was a small JavaScript program. उसके बाद ये Chrome में भी Chrome के लिए भी बन गया. So I think in past 3 years, I think हाँ yeah 3 year ago, ID for Chrome भी आ गया था. Selenium रिमोट कंट्रोल जिसको हम Selenium 2.0 भी बोलते हैं, 2.0 या 2.0, ये एक फर्दर एनहांसमेंट था ओवर Selenium IDE. So Selenium IDE was like it was not programmatic, like it was just used to record your actions, okay, and play them again. उसमें एक ऐसा प्रोग्रामेटिक सपोर्ट उतना ज्यादा नहीं था. तो प्रोग्रामेटिक सपोर्ट लाने के लिए Selenium रिमोट कंट्रोल RC, ठीक है, RC मतलब रिमोट कंट्रोल, ये आया ताकि हम लोग उसमें प्रोग्रामिंग लॉजिक्स इंप्लीमेंट कर सके. कुछ टाइम बाद ये भी एब्सोल्यूट हो गया, Selenium रिमोट कंट्रोल भी आपको यूज नहीं करता है. सो द लेटेस्ट वन व्हिच इज यूज्ड इन करंट इंडस्ट्री इज WebDriver, Selenium WebDriver. So Selenium WebDriver, सी Selenium रिमोट कंट्रोल के कुछ लिमिटेशंस थे. जैसे मैं एक सबसे बेसिक लिमिटेशन बता देता हूँ. अगर आप लोगों को इंटरव्यू में कोई पूछता है कि Selenium RC से WebDriver पे जाने की जरूरत क्यों पड़ी, ओके, सो Selenium रिमोट कंट्रोल का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था सेम ओरिजिन पॉलिसी. आप लोगों ने सुना है ये सेम ओरिजिन पॉलिसी पहले? No. No, Kapil. Anyone? No. Okay. So same origin policy क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल सी इफ आई गो हियर, ये मेरा GitHub अकाउंट है, ओके, इसका ओरिजिन क्या है? github.com, राइट. तो अगर Selenium RC के अंदर मेरा प्रोग्राम जो सबसे पहले मतलब जब ब्राउजर स्टार्ट होता है एंड ब्राउजर स्टार्ट होके मैं सबसे पहले जिस डोमेन पे रिडायरेक्ट करता हूं अपने ब्राउजर को, तो फॉर एग्जांपल मैंने GitHub ओपन किया, राइट. अब इसका लिमिटेशन क्या था कि मैं GitHub से प्रोग्रामिंग के थ्रू अपने Selenium के कोड के थ्रू फेसबुक ओपन नहीं कर सकता था, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल लेट्स से यहाँ पे कहीं एक लेट्स से दिस लिंक पर्टिकुलर लिंक पॉइंट्स टू सम फेसबुक, ओके. तो अगर ये फेसबुक पे पॉइंट कर रहा होता था तो Selenium RC इसको हैंडल नहीं कर सकता था, ओके. इट वुड हैव वर्कड ओनली विद इन दिस पर्टिकुलर डोमेन स्कोप, है ना. मतलब this is the origin of your Selenium RC program, Selenium RC code, or your browser instance, whichever you are like you are launching from your Selenium RC. Got the point? अगर मैं Facebook के किसी लिंक पे क्लिक करके जाऊंगा तो ये कोड, ये जो डोमेन है मेरा, ये चेंज होके facebook.com समथिंग समथिंग हो जाएगा, राइट. अगर मैं GitHub से किसी Facebook के लिंक पे क्लिक करता हूं तो Got it? Yes, Kapil. Yeah. Yes. मतलब ओरिजिन लिंक के अंदर अगर कोई सब लिंक है और वो उसको ट्रिगर नहीं कर पाएगा, राइट? यस. सी मतलब आपका पेरेंट ओरिजिन जो है, अगर मैंने github.com ओपन किया है अपने कोड के थ्रू, तो मेरा जो पेरेंट ओरिजिन है वो github.com ही होना चाहिए. इसके आगे मैं कुछ भी मतलब abc/er
EDR स्लैश, मतलब इसके अंदर में चाइल्ड पाथ पे कहीं भी जा सकता हूँ, बट गिटहब से मैं रिडायरेक्ट करके facebook.com पे नहीं जा सकता। ओके ये सिलेनियम आरसी का लिमिटेशन था, इसको हम बोलते हैं सेम ओरिजिन पॉलिसी, राइट? यस ठीक है, मतलब इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोग पूछते हैं कि सेलेनियम आरसी से वेब ड्राइवर में जाने की जरूरत क्यों पड़ी। ओके, सो यू हैव द आंसर नाउ। ओके, सो द फोर्थ कंपोनेंट इज सेलेनियम ग्रिड। ग्रिड का मतलब आप लोगों को पता है क्या होता है? ग्रिड का बेसिक मीनिंग, मतलब नॉट रिलेटेड टू सेलेनियम बट अ जनरल ग्रिड। व्हाट इज ग्रिड? As per like view concept मैं बता सकती हूँ, grid like a table view or something grid structure, horizontal and vertical जो होते हैं. Yeah, so grid is a मतलब you can say two dimension array. Array आप लोगों को पता है ना? Yes. Okay. So grid you can consider as two-dimensional array or collection of various machines. Okay, अगर आप जैसे नेटवर्क किसी नेटवर्क में देखते हैं तो बहुत सारे मशीन्स इंटरकनेक्टेड हैं, सो ग्रिड इज सिमिलरली लाइक अ नेटवर्क. Okay, Selenium grid is a setup where your Selenium program runs on multiple machines. Okay, बट अभी Selenium grid जो है ये भी एब्सोल्यूट हो चुका है, क्योंकि अभी हमारे पास जो फ्रेमवर्क्स हैं वो इतने ज्यादा कैपेबल हो चुके हैं कि यू नो you can run test cases in parallel on multiple browser using those frameworks only. Okay, so main जो अभी काम चल रहा है इंडस्ट्री में is on WebDriver. Okay, so we'll concentrate mainly on WebDriver. So yeah, as you all know, it was started by Jason Huggins in 2004. He was an employee in ThoughtWorks. तो एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम लिखा था जो आगे जाके as a web driver evolve हुआ. Okay, so okay, I was showing you guys ID. Okay, अभी तक के पॉइंट्स में कुछ भी क्वेरी है, कंसर्न है? नो कपिल. नो कपिल. See guys, कोई भी क्वेरी हो किसी भी टाइम, जस्ट डोंट हेजिटेट, मुझे बीच में यू कैन आस्क एनी टाइम, है ना? मेन जो ऑब्जेक्टिव है हमारा वो आप लोग के सारे क्वेरीज क्लियर करना एंड टू मेक सेलेनियम कंसेप्ट्स क्लियर टू यू गाइस. ओके, सो बिल्कुल हेजिटेट मत करना कुछ भी पूछना हो तो, रिलेटेड टू सेलेनियम ओनली, राइट? ओके, so see, Firefox में या Chrome में whenever you download add an add-on, you guys know how to add extensions and add-ons in browsers, right? Yes. Okay, so see, right now I have Selenium ID added to my Chrome. Okay, I click on this, record a new test. ID का यही वाला वर्जन आप लोगों को बताया था ना, कि पुराना वाला फायरफॉक्स पे जो वर्जन है वो वाला सिखाया था? दिस वन सर, यही बताया था. यही बताया था ना. ओके, cool. So record a new test. Let's say some docs. Okay, एक काम करते हैं, Selenium
इसी से स्टार्ट करते हैं. Start recording. Okay, now let's say I click on documentation. Okay, now I click on Selenium installation. Now I click on right arrow. Now I scroll down, scroll up, then I click on WebDriver. Okay, ठीक है, इतना करते हैं. Then stop recording. Basic test. Okay. See, अभी ठीक है, ये जो मेरे एक्शंस थे वो सारे रिकॉर्ड हो गए, राइट. अभी क्या है, इफ यू वांट टू जनरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रिकॉर्डेड एक्शन, ठीक है. अभी आपको कोई बोलेगा कि मुझे जावा में ये टेस्ट केस लिख के दो या फिर पाइथन में कोई टेस्ट केस लिख के दो, तो व्हाट सिंपली यू कैन डू, फर्स्ट डू द ऑल द मैनुअल स्टफ. तो आपके जो एक्शंस हैं, क्लिक के, नेविगेशन के, वो सारे रिकॉर्ड हो जाएंगे लाइक दिस वन. नाउ you just click on your test case, export. You want to export it as Python, Java, C#, Ruby. Okay, so let's select Python, then export, desktop, save. Okay, now you can see इंपोर्ट जो भी करना था, ये सब करना था, वो सब आईडी ने रिकॉर्ड इंपोर्ट करके आपको आपका एक बेसिक प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर दे दिया. गॉट इट? यस. ये आप लोग ये किया था क्या आईडी के इसमें? नो सर, ये नहीं. नो कपिल, Okay. ये नहीं हुआ था. Okay, so now whenever you guys are writing code for your framework for your company, you can use this shortcut. इसमें क्या रहता है कि एक बेसिक आपको कोड मिल जाता है, उसमें क्या है, फिर आप आपके हिसाब से जो भी आपको लॉजिक उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, you can implement that particular logic. Right? Does this seem helpful? Yes. 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 Kapil, I have one query. Yes. जब हम लोग आईडी रन करते रिकॉर्ड करते हैं तो वहाँ पे सिलेक्टेड वैल्यू बोल के एक ऑप्शन आता है, तो मैंने उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश किया मगर वो कहीं पे भी वो फिट नहीं बैठ रहा था. वो कब यूज होता है सिलेक्टेड वैल्यू? कौन सा? कोई भी हम लोग स्क्रीन पे जाके हम लोग राइट क्लिक करके वो देखते हैं ना, यहाँ पे नहीं. आप जो अपने साइट खोला था ना www.selenium.dev ब्राउजर पे, वहाँ पे राइट क्लिक करके फिर आईडी का जो खोलते हैं ना, राइट क्लिक करके वो आईडी का जो मतलब ऑप्शंस आते हैं ना जहाँ पे हम लोग चूज करते हैं वो टेक्स्ट होगा कि टाइटल होगा, वो वाला बोल रही हूँ मैं. रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद. हाँ राइट. एक मिनट.
कहाँ पे बोल रहे हो? यहाँ पर? नहीं, आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं उसके बाद ब्राउजर में जाकर राइट क्लिक करके जहाँ पे हम लोग वो टाइटल सिलेक्ट करते हैं, वो आपने टैप किया ना टाइटल पे, फिर स्क्रॉल अप किया। अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो, मैं बताती हूँ। ओके। यहाँ पे अब कहाँ? हाँ, अभी आप राइट क्लिक करो कहीं पे भी, मतलब टाइटल पे या हाँ सिलेनियम आईडी। हम्म हाँ, यहाँ पे आप वेरीफाई के अंदर जाके देखो, वहाँ पे सिलेक्टेड वैल्यूज, हाँ ये नीचे सिलेक्टेड वैल्यू, हम्म वो कब मतलब ये हम लोग यूज करते, क्योंकि मैंने इसको ट्राई किया था एग्जीक्यूट करने में, वो कभी भी वो फिट नहीं आता है। मतलब कौन सी पर्टिकुलर केस में हम लोग वो यूज कर सकते हैं? सिलेक्टेड लेबल, लेबल तो पता है, वैल्यू नहीं समझ में आ रहा है। So, verify selected value, right? Yes. So, see, ये क्या करना है? मैंने ये जो पूरा वैल्यू सिलेक्ट किया है, इसका हम एक्सपार्ट देखते हैं। है ना? हाँ, सी, इसने क्या किया, मैंने ये वैल्यू सिलेक्ट किया था, राइट? राइट। इसके पीछे जो इसका लोकेटर था, ठीक है, तो अभी मतलब सिलेक्टेड वैल्यू से क्या मतलब है कि मैंने जिस वैल्यू पे ये इस तरीके से ड्रैग एंड सिलेक्ट किया है, राइट? यस। वो उसके लोकेटर को रिकॉर्ड करेगा एंड देन उसमें क्या लिखा हुआ है कि देन वेरीफाई, मतलब ये जो पर्टिकुलर एलिमेंट है, ये मेरे जब मैं इसको रीरन करूंगा अपने टेस्ट को, तो दिस पर्टिकुलर वैल्यू शुड this particular element should be located on that web page. This is what selected value is. As a selected option. ऑप्शन नहीं कह सकते, मतलब मेरे पेज के ऊपर कोई भी मैंने एक पर्टिकुलर लेट्स से टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट हम लोग कैसे करते हैं, उस टेक्स्ट के ऊपर ले जाके या तो हम डबल क्लिक ऐसे करते हैं, है ना, या फिर हम इस तरीके से सिलेक्ट करते हैं, राइट? अभी ये जो है वेब ड्राइवर, फॉर एग्जांपल सी वेब ड्राइवर ड्राइव्स, ठीक है, ये मैंने इतना सिलेक्ट किया है, ये किस एलिमेंट के अंदर होना, किस एलिमेंट के अंदर होगा, इस एलिमेंट के अंदर वेब ड्राइवर ड्राइव्स, ओके, मेरा सिलेक्टेड वैल्यू किस एलिमेंट के अंदर है, गॉट इट? ओके ओके, यस यस। तो उसने उस एलिमेंट को रिकॉर्ड किया कि मतलब मैं अपने रिकॉर्डर को बोल रहा हूं कि एक असर्शन लगाना है मुझे अपने कोड के अंदर कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट दिस p, ओके, शुड बी प्रेजेंट, राइट, ओके, गॉट इट? राइट राइट, यस। एक्चुअली मैंने ये किया था मगर मुझे एरर दिया था, तो इसलिए मैंने आपको पूछा। ठीक है, थैंक यू। किसी डायनामिक पेज पे किया था या स्टैटिक पेज पे किया था?
स्टैटिक पेज पे किया था। वो वन वैल्यू आ रहे थे, सपोज 21, 15 वो वाला, तो मैंने उसको सिलेक्ट करके वो वैल्यू को ऐसे सिलेक्ट करके फिर मैंने सिलेक्ट वैल्यू दिया था। जब मैंने रिकॉर्ड दोबारा रन किया तब मुझे वहाँ पे एरर दिया था, तो इसलिए मुझे लगा कि कुछ और मतलब होगा शायद, तो इसलिए मैंने पूछा। चलो एक काम करते हैं, इसको हम रन करके देखते हैं, लेट्स सी। यस यस। मुझे इसको डॉक्यूमेंटेशन पे गया, वो ठीक है, वेब ड्राइवर पे क्लिक किया। ओके, एलिमेंट विथ लोकेटर वेब ड्राइवर इज नॉट अ सिलेक्ट। राइट, यही मुझे भी आ रहे थे। मेरे नया वर्जन आईडी का इन्होंने क्या क्या वेरीफाई सिलेक्टेड वैल्यू ऑन आईडी, दिस इज पॉप। ओके, लेट मी सी इफ इट इज रिलेटेड टू, यहाँ पर कोई ड्रॉप डाउन है क्या? ड्रॉप डाउन, ओके लेट मी चेक। मैं कोई एक ड्रॉप डाउन वाला वेबसाइट मुझे ढूंढना पड़ेगा, देन maybe the next second I'll show you guys, है ना? या श्योर, नो प्रॉब्लम। Okay, so the main use of ID nowadays is that generation of your dummy code. Okay. Okay, this thing I've already mentioned. Okay, ये बहुत ज़्यादा basic theory है. Introduction to automation testing. Why we need automation testing? मैं इस पे ज़्यादा stress नहीं दूंगा. It's just like we need to automate repetitive task. Okay, manual testing involves some possibility of error. Okay, if you do same thing again and again, वो monotonous हो जाता है, so you don't want to do monotonous work. 4 point increase chances of new learning. So see, if you have automated a repetitive task, तो क्या होता है, now you can concentrate on new learnings, you can try to automate new tasks. Okay, so that's what the importance of automation testing is. Obviously it's going to be much faster than your repetitive manual testing. Okay, main benefit is parallel testing can be achieved. For example, let's assume मेरे पास Facebook ने कोई एक लॉगिन का फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट किया है, ठीक है। अभी Facebook को ये देखना है कि सी अभी इन लोगों के जो सर्वर्स का कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये कैसे, चलो फेसबुक छोड़ो, IRCTC को देखो। IRCTC पे अगर आप देखोगे तो तत्काल के टाइम पे कितना, आई थिंक मोर देन 5 to 10 लाख लॉगिन होते हैं, राइट।
at 10 AM, ठीक है। तो IRCTC को अपना सर्वर इस तरीके से कॉन्फ़िगर करना है कि उनको पता लग सके कि कितने क्वेरीज मैक्सिमम एट द सेम टाइम उनका सर्वर जो है वो हैंडल कर सकता है। तो जस्ट अज्यूम दिस कि वो 10 लाख लॉगिन करने के लिए अगर हम लोग मैनुअल रिसोर्सेज को लगाएंगे तो उसमें कितना टाइम लगेगा, और मुझे वो 10 लाख लॉगिन ऑन द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे वो 10 लाख लॉगिन करना है। तो मैनुअली मतलब I don't think it is going to be very economical or cost effective. So that's where the automation comes into place. Using Selenium parallel testing, you can achieve the same task within like what 2-3 minutes, not more than that. Okay, so that's what the use of automation testing. Advantage of Selenium, I've already explained. Open source, no license required, multiple language support. Selenium की जो libraries हैं, Python में भी हैं, C Sharp में है, Java में है, PHP में भी हैं, Perl में भी हैं, जहाँ तक मुझे पता है। ओके, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए। जैसे जावा में आप में से जो भी काम कर रहा है, तो टेस्टेंजी आप लोगों ने सुना होगा। जावा में आप में से कोई काम कर रहा था ना, जावा सेलेनियम? One guy? Yes, sir. Yeah. So you are working with TestNG only, right? Correct. TestNG. Okay. So with Java, there is TestNG. With Python, there is PyTest. Okay. Cross-browser testing, जैसा मैंने बताया, with the same code, you can the same logic you can run on Firefox as well as Chrome as well as IE. Okay. क्रॉस डिवाइस टेस्टिंग, जो सेलेनियम का मोबाइल एमुलेटर आता है, यू कैन यूज फॉर टेस्टिंग योर कोड और ऑटोमेशन ऑन आईफोन्स, एंड्रॉइड्स। ओके, कम्युनिटी सपोर्ट बहुत बड़ा है सेलेनियम का, बिकॉज एज आई मेंशन इन द बिगिनिंग ऑफ दिस सेशन कि अभी सेलेनियम को गूगल जो है वो बहुत ज्यादा बैक कर रहा है। ओके, सो दैट्स वाई अगर आप देखो गिटहब पे, स्टैक कोड्स पे सेलेनियम का मतलब मोस्ट ऑफ द इश्यूज दैट यू फाइंड, you will get the resolution for those issues either on Stack Overflow or some GitHub. Okay. Selenium पे आप माउस कर्सर एंड कीबोर्ड सिमुलेशन कर सकते हो। माउस कर्सर मतलब आपका जैसे कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, ठीक है, दैट यू कैन सिमुलेट। कीबोर्ड सिमुलेशन इज, आप में से कोई बता सकता है व्हाट डज दिस कीबोर्ड सिमुलेशन here represents? कुछ एक आइडिया, वाइल्ड गेस। ऐसा देखो, मेरे सेशन में अगर आप गलत भी बोलोगे तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। सो जस्ट बी वेरी ब्लंट इन आंसरिंग द क्वेश्चंस। तो क्या, जितना ज्यादा इंटरेक्टिव होगा उतना मजा आएगा सीखने में। Keyboard simulation means like it can be called as keyboard driven, like when the user has to enter something using the keyboard. Okay, so see, keyboard driven is like for example function keys आप लोगों को पता है? Yes. फंक्शन कीज क्या होती है? F1 to F12, right? So programmatically, if you want to achieve, so for example, see the shortcut, अभी हम लोग क्या करते हैं, ये इंस्पेक्ट पे क्लिक करके साइड में ये विंडो ओपन करते हैं। अच्छा, इस विंडो को क्या बोलते हैं, कुछ आइडिया है? ये जहां पर ये एलिमेंट्स, कंसोल, सोर्सेज, नेटवर्क सब दिख रहे हैं, what do we call this window?
property inspect or window or something like that.